नारायण भगवाननी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय, भगतजी महाराजनी जय, शास्त्रीजी महाराजनी जय, योगीजी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, महंत स्वामी महाराजनी जय, સુરત અક્ષરધામ મહોત્સવની જય, કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવની જય. આજે ભગવાનને બહુ સુંદર પુષ્પના શણગાર ધારણ કરાવ્યા છે. આ આપણી ભક્તિની રીત ચાલતી આવી છે કે આપણા જે ભાવ હોય એ બધા ભગવાનને અર્પણ કરીએ. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એવું કહેતા કે આપણે ભગવાનને લાડ લડાવીએ, એમને શણગાર કરીએ, એ આપણો રજોગુણ કાઢ્યો કહેવાય. આપણા અંતરમાં જે ભાવ પોતાની જાતને શણગારવાના આવતા હોય એ બધા એમને ભગવાનને ધરાવવાના હોય છે. એટલે યથા દેહે તથા દેવે એ બધા જ ભાવ ભગવાનને આપણે અન્નકૂટ ધરાવીએ છીએ, સારા સારા વસ્ત્રો ધારણ કરાવીએ છીએ, બધા રાજોપચાર એમને ધારણ કરાવીએ છીએ. ભગવાનને આમ જુઓ તો કંઈ જોઈતું નથી, પણ એમને એક જ વસ્તુ જોઈએ છે કે આપણી ભક્તિને એ અંગીકાર કરે છે. આપણા હિન્દુ ધર્મની પરંપરાની અંદર આપણા ઋષિમુનિઓએ આપણને મૂર્તિની અંદર ભગવાનને જોવાની દૃષ્ટિ આપી છે. અને ભગવાન પણ પોતે કૃપા કરીને એવું કહે છે કે મારી 8 પ્રકારની પ્રતિમામાં અને સંતમાં હું અખંડ નિવાસ કરીને રહું છું. ગરડા પ્રથમનું 68મું વચનામૃત એમાં મહારાજે વાત કરી છે. અને એવી પ્રતીતિ પણ ભગવાન આપણને કરાવે છે. 1995ની સાલમાં ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર લગભગ આખા વિશ્વની અંદર એક સમાચાર બહુ જ બધે ગાજ્યા હતા કે ગણપતિજી દૂધ પીવે છે. અને ઘણા બધા એનું તાગ કાઢવા પ્રયત્ન કર્યો પણ કાંઈ મળ્યો નહોતો. અને અનુભવ તો બધાને થયો હતો. તો એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાઉથ આફ્રિકામાં વિરાજમાન હતા. અને એક સંતે કલકત્તાથી બાપાને ફોનમાં પૂછ્યું હતું કે સ્વામી આ બધે ગણપતિજી દૂધ પીવે છે, આપણા મંદિરમાંય થતું હતું. એટલે એવું પૂછ્યું કે સ્વામી આમાં આપણે શું સમજવાનું? ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે ભગવાન તો મૂર્તિમાં સાક્ષાત બિરાજમાન રહે છે અને આપણી ભક્તિ હોય એ બધી અંગીકાર કરે છે. પણ ક્યારેક જ્યારે લોકોની શ્રદ્ધા ઓછી થાય ત્યારે ભગવાન આવો કોઈક પરચો બતાવે છે જેથી બધાની શ્રદ્ધા પાછી જાગૃત થઈ જાય. પણ ખાલી એ જ વખતે દૂધ પીવે છે એવું હોતું નથી. સારંગપુરમાં આપણે જે મંદિર છે એમાં જે છેલ્લો ખંડ છે એમાં ઘનશ્યામ મહારાજ વિરાજમાન છે, નાના ઘનશ્યામ મહારાજ. તો લગભગ 40 વર્ષ પહેલાંનો પ્રસંગ છે કે એ વખતે અમારે ત્યાં પૂજારી ધર્મ સ્વરૂપ સ્વામી હતા. હમણાં 2 વર્ષ પહેલાં ધામમાં ગયા ધર્મ સ્વરૂપ સ્વામી, પણ ભક્તિભાવવાળા સંત હતા. તો સાંજના જે ભગવાનને થાળ ધરાવ્યો હતો ઘનશ્યામ મહારાજને, તો એમાંથી ભગવાન રીતસર કેટલીક વાનગીઓ જમ્યા અને ખ્યાલ આવ્યો હતો કે ભગવાને અંગીકાર કર્યું છે એવું તો ઓછું થયું હતું. એટલે બધાને ખૂબ આનંદ થયો. પછી પૂજારીને એવો ભાવ થયો કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ત્યાં તાજપરમાં બિરાજમાન હતા. સારંગપુરથી બહુ નજીક થાય તાજપર ગામ. તો એમને એવું થયું કે આપણે આ પ્રસાદીનો થાળ બાપા પાસે લઈ જઈએ. એટલે આખો જે ભગવાનનો સાંજનો થાળ હતો એ ત્યાં તાજપર લઈ ગયા. અને બાપાને રાતના ભોજનનો સમય થયો તે વખતે જ ત્યાં એમની સામે આખો પ્રસાદીનો થાળ મૂક્યો. અને પછી બાપાને કીધું કે સ્વામી આજે ઘનશ્યામ મહારાજ છે એ પોતે થાળ જમી ગયા. તો
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું કે ખાલી આજે જ જમે એવું નથી, રોજ જમે છે. આજે તમને દેખાડ્યું, બાકી જમે છે રોજ. તો ભગવાન પોતે આપણી ભક્તિને અંગીકાર કરવા માટે અર્ચા સ્વરૂપ એમણે ધારણ કર્યું છે. ભક્તાધીન સ્વરૂપ છે, એને અર્ચા સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. અને અહીંયા દક્ષિણ ભારતમાં તો એનો ખૂબ જ મહિમા છે અર્ચા સ્વરૂપનો. રામાનુજાચાર્યજીએ જે ભગવાનના 5 સ્વરૂપો બતાવ્યા છે, એક પર સ્વરૂપ એટલે જે ભગવાનના ધામમાં છે, પછી વિભુ સ્વરૂપ છે એટલે વિભવ કે છે એને, કે જે પેલા જે કહેવાય ને કે અવતારો રૂપે થયા છે, વિભવ સ્વરૂપ. પછી ત્રીજું સ્વરૂપ છે એ ભગવાનનું અવતાર સ્વરૂપ એટલે અવતાર સ્વરૂપ વિભવ સ્વરૂપ. પછી વ્યૂહ સ્વરૂપ કે છે, વ્યૂહ એટલે કયું, તો જે બ્રહ્માંડોની રચના કરવાની અંદર ભગવાન જે સ્વરૂપે ઐશ્વર્યવાળું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એને વિભવ સ્વરૂપ કહે છે. પછી ચોથું સ્વરૂપ છે વ્યાપક સ્વરૂપ કહે છે. વ્યાપક એટલે અણુ અણુમાં છે એ વ્યાપક સ્વરૂપ છે. અને 5મું સ્વરૂપ અર્ચા સ્વરૂપ કહે છે. આ 5 સ્વરૂપો બતાવ્યા છે. પર સ્વરૂપ તો ધામમાં હોય એટલે આપણે જોઈ ન શકીએ એને. વ્યૂહ સ્વરૂપ છે એ પણ આ બ્રહ્માંડોના સર્જન કરતા હોય એટલે એ આપણી આંખથી દેખાય નહીં. ત્રીજું સ્વરૂપ વ્યાપક છે, એ પણ આપણે સાક્ષાત્કાર વગર અનુભવી શકીએ નહીં. ચોથું સ્વરૂપ વિભવ સ્વરૂપ છે એટલે ભગવાન પૃથ્વી પર પધારે છે અને પ્રગટ પણ રહે છે. એ હરતું ફરતું સ્વરૂપ છે, પણ એ અત્યારે આપણી સામે ન હોય, એ તો બીજે પણ વિચારતા હોય ને. પણ 5મું અર્ચા સ્વરૂપ છે ને, એ સૌથી વધારે સુલભ સ્વરૂપ છે. ભગવાનની મૂર્તિ એ તો આપણે ઘરે પણ હોય, આપણે સાથે પણ રાખી શકીએ. એ અર્ચા સ્વરૂપ ભગવાનનું સુલભમાં સુલભ સ્વરૂપ છે. એટલે આપણે જે કંઈ નિત્ય પૂજા કરીએ છીએ, એ બધી ભક્તિ કરીએ છીએ ને, આ અર્ચા સ્વરૂપની અંદર ભગવાનની ભક્તિ એ આપણે કરીએ છીએ. તો આ 5 સ્વરૂપોની વાત છે. મને લાગે કે હું हिंदी में बात करूं क्योंकि हमारे बीच में प्रोफेसर गोकुल कामत जी पधारे हैं, विराजे, तो मैं हिंदी में बात करूंगा जिससे हम बात कर पाएँ. तो भगवान के जो 5 स्वरूप बताए रामानुज संप्रदाय में, इसमें ये अर्चा स्वरूप हैं. तो वे भगवान का प्रकट स्वरूप माना जाता है. जिस तरह से भगवान साक्षात विचरण करते, उसी प्रकार से इस प्रकार मूर्ति में भगवान का प्रवेश होता है और वे मूर्ति की आँखों से हमारे सामने देखते हैं. वे मूर्ति के द्वारा हमारी पूजा अंगीकार करते हैं. स्वामीनारायण भगवान के समय की बात है कि उस समय गढ़डा में एबल खाचर थे. एबल खाचर दादा खाचर के पिताश्री. तो एबल खाचर वैसे तो भक्त थे, परंतु फिर भी मन में कभी कभी संशय हो जाता था. तो एक बार ऐसा हुआ कि एबल खाचर अपने खेत में बैठे थे और उनके साथ उनके जो दरबारी लोग थे वे भी उनके साथ बैठे थे. तो उनमें से कई लोगों ने उनसे कहा, एबल खाचर से, कि आपके घर में आपकी दोनों पुत्रियां लाडूबा और जीवबा दोनों दिन भर भक्ति ही करती रहती हैं और अभी उनकी उम्र हुई है ससुराल जाने की, और फिर भी यह संसार व्यवहार से विरक्त होकर केवल भजन भक्ति करती रहती है. यह हमारे लिए शोभादायक नहीं है. तो आपको समझना चाहिए और अपनी बेटियों को समझाना चाहिए. तो ऐसी बहुत बातें की. तो एबल खाचर के मन में इन शब्दों का असर हो गया और वे तुरंत खेत में से घर पर आए. उस समय जीवूबा अपना जो कमरा था, उस कमरे में अभी भी वह प्रासादिक स्थान है. तो वहाँ पर भगवान की मूर्ति को, प्रतिमा को दूध अर्पण कर रही थी कटोरे में. तो जब एबल खाचर आए और दरवाजे के पास खड़े तो उन्होंने देखा कि ये जीवूबा भगवान को दूध अर्पण कर रही है. तो मन में उन शब्दों का इतना असर हो गया था, उनको बहुत क्रोध आया
कि अभी अभी सुना था कि ये भक्ति 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 क्या करनी है भक्ति, अब ससुराल जाने की उम्र है, भक्ति कर रही है। तो उन्होंने गर्जना करके कहा कि बंद कर दो सब नाटक अपना। तो जीवुबा ने देखा कि बापू आपको क्या हुआ, मैं तो भगवान को दूध लगा रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। तो लाडूबा ने कहा, अरे अब्बल खाचर बोले झूठ है ये सब। जीवुबा ने कहा, बापू ये सब झूठ नहीं है, ये सामने भगवान है। तो एबल खाचर बोले, यदि सच है तो मेरे सामने दिखाओ, ये दूध अपने भगवान को पिला कर दिखाओ। जीवुबा ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु बापू को इस समय संशय हुआ है, तो आप कृपया इस संशय का निवारण करें। भगवान ने जीवुबा के हाथ में से कटोरा लिया और पूरा का पूरा कटोरा खाली कर दिया और खाली कटोरा जीवा खाचर के मुंह पर फेंका भगवान ने। तो जीवा खाचर के हाथ में से तलवार गिर गई, हाथ जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जीवुबा तुम्हारी भक्ति सही है। तो कभी कभार भगवान ऐसे चमत्कार दिखाते हैं हमारी श्रद्धा को पुनर्जीवित करने के लिए, हमारी शंका का निवारण करने के लिए। सारंगपुर में अभी जो मैंने बताया, जो अंतिम खंड में घनश्याम महाराज की प्रतिमा है, वहाँ पर पूरा धर्मकुल है। घनश्याम महाराज के साथ धर्मदेव और भक्ति माता की भी जी प्रतिमा है, और उनके साथ साथ रघुवीर जी महाराज और अयोध्या प्रसाद जी महाराज, उनकी भी प्रतिमा है। 5 प्रतिमाएं हैं अंतिम खंड में। तो ये बात है शास्त्री जी महाराज के समय की। धर्मस्वरूप स्वामी अभी जो मैंने बात बताई, उन्होंने हमें यह बात कही थी कि शास्त्री जी महाराज के समय में पुजारी संत मुनि स्वामी नाम के एक थे, जो पुराने उस समय के मुनि स्वामी, अभी नारायण मुनि स्वामी उनकी बात नहीं है, लेकिन उस समय एक शास्त्री जी महाराज के समय में एक मुनि स्वामी नाम के एक संत थे। और वे पुजारी की सेवा तो करते थे, लेकिन जिस प्रकार से भगवान की मर्यादा रखनी चाहिए वैसी नहीं रख पाते थे, थोड़ी सी लापरवाही रह जाती थी। कभी ऐसी शुद्धि जो रखनी चाहिए ऐसी कभी नहीं रख देते। कभी गरम गरम भोजन आया तो ठंडा करने की बजाय सीधा लगा देते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जल्दी जल्दी में उन्होंने ऐसी कुछ गलती कर दी और भगवान को भोग लगाया। तो पास में जो अयोध्या प्रसाद जी महाराज थे ना मूर्ति में, एक तमाचा लगा दिया पुजारी को और ऐसा तमाचा लगाया कि वे साधु जब तक जिंदा रहे तब तक उनकी गर्दन टेढ़ी रह गई, ऐसा तब तक वे टेढ़ी रह गई ऐसे ऐसा एक तमाचा लगा दिया। तो भगवान कभी मूर्ति में से ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि वे हमेशा विराजमान रहते हैं। ऐसे चमत्कार दिखाए ना दिखाए ये तो उनकी मर्जी की बात है, लेकिन श्रद्धा, भक्त की श्रद्धा जैसी होती है वैसे भाव भगवान मूर्ति में रहकर अंगीकार करते हैं। तो यह जो श्रद्धा है वह हमारे सनातन धर्म के मूल में से एक है कि कभी यह श्रद्धा हमारी डिगनी नहीं चाहिए। हम तो देखते हैं भगवान को, लेकिन भगवान हमको देखते हैं। कभी हम देखना भूल जाते हैं, लेकिन वे तो देखते हैं कि भक्त आया है, दर्शन करता है, दंडवत प्रणाम करता है। भगवान के दर्शन करने की विधि हमारे परंपरा में हमको बताई गई कि हम भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। महिलाएं पंचांग प्रणाम करती हैं और हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ये कितना बड़ा भाव है साष्टांग दंडवत प्रणाम का। साष्टांग दंडवत प्रणाम में 8 अंग होते हैं ना, अष्ट अंग होते हैं, 8 अंग। 8 अंग में से 5 स्थूल अंग होते हैं और 3 सूक्ष्म होते हैं। 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म। स्थूल अंग में क्या होता है, एक तो जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तब हमारा मस्तक भगवान के चरणों में हम अर्पण करते हैं। फिर भगवान के चरणों में अपने दोनों हाथ, मतलब हाथ से हम प्रणाम करते हैं, ये दूसरा अंग है। तीसरा अंग है हमारा सीना,
छाती, यह भगवान को अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं। चौथा अंग है हमारे घुटने, ढीचन, और पांचवा अंग है हमारे पैर। 5 स्थूल अंग हैं और 3 सूक्ष्म अंग। 3 सूक्ष्म कौन से? एक है हमारी दृष्टि, दृष्टि से हम भगवान को प्रणाम करते हैं। दूसरी है हमारी वाणी, भगवान की स्तुति का गान करते हैं ना प्रणाम करते समय, तो दूसरी है भगवान को वाणी से हम प्रणाम करते हैं। और तीसरा सूक्ष्म अंग है मन, मन से हम प्रणाम करते हैं। तो आमतौर पर हम भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, पर जब हमारा मन नहीं होता तो अष्टांग प्रणाम नहीं होते, सप्तांग प्रणाम होते हैं। सप्तांग हो गए ना, एक अंग कम हो गया। और उस समय यदि भगवान की मूर्ति को हम अपनी आंखों में नहीं रखते तो षडंग हो गया, सप्तांग नहीं हुआ। यदि वाणी से स्तुति नहीं बोलते तो पंचांग हो गया, एक अंग और कम हो गया। और फिर हाथ फैलाकर भगवान का प्रणाम नहीं किया तो चतुरंग हो गया, एक एक कम हो जाता है। कभी किस लोग ऐसा करते हैं, हाथ नहीं फैलाते। तो योगी जी महाराज बोलते थे कि डेढ़क किया केड़क किया दंडवत नहीं करना है। डेढ़क क्या मतलब मेढक की तरह, केड़क में सिर्फ हमारी कमर ही हिलती है। तो कहते हैं साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। योगी जी महाराज गोंडल में विराजमान थे और एक व्यक्ति प्रणाम ऐसे करते, आधा आधा दंडवत करती थी। तो योगी जी महाराज बोले ये क्या कर रहा है? तो किसी ने कहा ये दंडवत प्रणाम। योगी बाबा कि ऐसे दंडवत, ऐसे तो मैं 1000 कर दूँ। तो उनका जो आदर्श है कि भगवान को हम सब कुछ समर्पित कर देते, या साष्टांग दंडवत प्रणाम का विधि। और उसमें भी जब मन भगवान को अर्पण करते हैं तो मन के भी 4 विभाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारों हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो मन का काम क्या होता है? संकल्प करने का। भगवान के विषय में हमारे संकल्प हो, उनको प्रसन्न करने के संकल्प हो, उनकी महिमा के विचार हो, यह संकल्प से हम भगवान को प्रणाम करते हैं। दूसरा है बुद्धि से। बुद्धि मतलब निश्चय, ये कौन है जो हमारे सामने खड़े हैं? वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा है। ऐसे भाव से हम प्रणाम करते हैं तो बुद्धि से प्रणाम हुआ। तीसरा है चित्त से। तो चित्त से उनकी मूर्ति का हम चिंतन करते हैं। और अहंकार से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ऐसे भाव से जब प्रणाम करते हैं तो मन भगवान में लगा, ऐसा कहते हैं। और ऐसा प्रणाम यदि हो जाए तो शास्त्रों ने कहा एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामः दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। एक प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अब अश्वमेध यज्ञ की विधि को आप सुने शास्त्रों में से, यह बहुत ही जटिल विधि होती है। अश्वमेध यज्ञ की बहुत ही कठिन होता है, राजा महाराजा ही कर सकते हैं, साधारण लोग नहीं कर सकते। और उदाहरण के रूप में यदि कहे तो हमने जो प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव मनाया था, ऐसा शताब्दी महोत्सव कोई 100 दिन तक मनाए तब ऐसा कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ किया। इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ का विधि होता है। तो ऐसे 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल एक प्रणाम में हो जाता है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। और फिर कहा दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अरे 10 अश्वमेध करने वाला पुण्य तो प्राप्त करता है लेकिन जन्म मरण से मुक्त नहीं होता। यहाँ पर तो भगवान को हृदय से एक प्रणाम करने वाला न पुनर्भवाय, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये कितना बड़ा काम है। हम कितने दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को? कितने करने चाहिए? 6 करने चाहिए। 5 प्रणाम करते हैं भगवान की विशेष भक्ति करने के लिए, 5 प्रणाम। और छठा स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि हर रोज़ भगवान की पास क्षमा याचना करने के लिए छठा दंडवत प्रणाम। मन कर्म वचन से जाने अनजाने में भक्त का कोई द्रोह हमसे हो गया हो तो उसका निवारण करने के लिए छठा दंडवत प्रणाम, छठा प्रणाम भगवान को इस तरह से किया जाता है। वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने कहा 5 प्रणाम भक्ति के रूप में और छठा प्रणाम
भगवान का भक्त का मन से भी द्रोह हो गया हो तो उसका निवारण करने के लिए ये छठा प्रणाम, और इसका हर रोज हमको स्मृति होती रहे कि मुझे मन कर्म वचन से भक्त का द्रोह नहीं होने देना है, इसके लिए ये छठा प्रणाम। तो इस 6 दंडवत प्रणाम हम करते हैं तो एक प्रणाम से 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो 6 से कितना होता है? हर रोज 60 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाए, ऐसा भक्ति का बहुत बड़ा फल हमें बताया गया है। तो ये भक्ति का महात्म्य कम नहीं है। जो भी भक्ति हम करते हैं, नाम स्मरण की भक्ति हम करते हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठे अध्याय में अजामिल का आख्यान है। अजामिल का वृत्तांत ऐसा है कि वह एक पवित्र ब्राह्मण था और बहुत ही कुलवान था, विद्वान भी था, नम्र भी था, भक्तिमान भी था, मातृ पितृ भक्त था। अजामिल के विषय में कहा गया है कि उनके मन में मत्सर नहीं था, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था, किसी की निंदा नहीं करता था, संयमी था, सभी प्रकार से वह गुणवान व्यक्ति था अजामिल। परंतु उसके जीवन में एक ऐसी घटना बनी कि एक बार अजामिल के पिताश्री ने कहा कि मैं पूजा कर रहा हूँ तो पूजा की सामग्री के लिए पुष्प की आवश्यकता है, तो तुम पास के उपवन में जाकर वहाँ से पुष्प चुन कर आओ। तो वह फूल चुनने के लिए गया था अजामिल, और जब वह वापस लौटता था तभी उसने एक दृश्य देखा कि एक व्यसनी और दुराचारी व्यक्ति किसी कुलटा स्त्री के साथ जाहिर में अयोग्य चेष्टा कर रहा था, और ये अयोग्य चेष्टा उसने देखी, उसका बहुत ही गहरा प्रभाव उसके मन पर पड़ गया। श्रीमद् भागवत ने कहा कि अजामिल समझदार था, उसने अपने मन की वृत्ति को रोकने का प्रयास किया परंतु वह रोक नहीं पाया और उसका मन भ्रष्ट हो गया। एक दृश्य देखने से उसका मन भ्रष्ट हो गया और फिर उसकी शादी हो चुकी थी परंतु अपनी पत्नी का भी उसने त्याग कर दिया और उस जो दुराचारिणी स्त्री थी उसके साथ वह रहने लगा। धीरे धीरे अपने पिता की सारी संपत्ति उसको लुटा दी, फिर भी उसका पूरा नहीं हुआ तो चोरी करने लगा, लूट मार करने लगा, व्यसन करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, सभी प्रकार से उसका जीवन बर्बाद हो गया। और ऐसे ही दुराचरण में ही 9 पुत्र हुए उसके बाद उसका 10वां पुत्र जो हुआ, किसी साधु ने इसका नाम नारायण रख दिया। अब अजामिल का अंतकाल नज़दीक आया, 88 वर्ष की उम्र में अंतकाल नज़दीक आया और इतने पाप किए थे तो अंतकाल में यमदूत लेने के लिए आए। जब यमदूतों के दर्शन हुए तो दिख गए तो बहुत ही त्रास हो गया उसके मन में, इतना भय हुआ। अब आसपास में कोई नहीं था, दूर अपने बच्चा नारायण खेल रहा था तो जोर से उसने पुकार किया नारायण, और जो इस नाम का पुकार हुई नारायण नाम की, तो उसी समय यमदूतों को रोकने के लिए भगवान के दूत आ गए और यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने कहा कि अरे तुम लोग कौन हो कि यमराज की सत्ता को रोकने के लिए आया हो? यह तो हमारे योग्य जीव है जिसने बहुत ही दुराचरण किए, इसलिए हम लेने के लिए आए। तब भगवान के दूत उन यमदूतों को कहते हैं कि तुम्हें पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है? धर्म के दूत होकर धर्म के मर्म को नहीं जानते? अरे इस अजामिल ने तो जब से नारायण का भगवान का नाम लिया है तब से अनंत अनंत जन्म के पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर दिया है, अब किसके ऊपर कोई पाप नहीं है। यमदूतों को वापस लौटना पड़ा। यमराज से जाकर कहा कि अरे ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम लेने गए और आपकी सत्ता को रोकने के लिए भगवान के दूत आ गए। तब यमदूत ने, मतलब कि यमराज ने, धर्मराज ने कहा कि धर्म का मर्म जानना आसान नहीं है। जो
भगवान का नाम लेता है, और वह भी कैसे? अनजाने में। अनजाने में यदि भगवान का नाम ले लिया, पतितः स्खलितः भग्नः संदष्टः तप्तः आहतः हरि रीति अवशेन आह पुमान नारहति यात नाम। ऐसा कहा कि कोई गलती से किस तरह से पतितः गिरते गिरते मन से भगवान का नाम बोल जाए, स्खलितः भग्नः पतितः कोई जलते हुए, कोई आहत होते हुए, कोई चोट लगते हुए, कोई पीड़ा के कारण भगवान का नाम अवशेन, मतलब बोलना चाहता नहीं था लेकिन बोल गया, तो पुमान नारहति यात नाम, वह कभी यम यातना के योग्य नहीं रहता, वह उस यातना के मुक्त हो जाता है। इतना भगवान के अनजाने में नाम लेने का मर्म है। स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत में कहा है, लोया के 3रे वचनामृत में बताया, महाराज ने कहा कि यदि कोई स्वामीनारायण नाम का उच्चारण करे, स्वामीनारायण नाम का अंत काल में, तो महाराज ने कहा कि गम्मे ते वो पापी हो, चाहे कितना भी पाप क्यों न किया हो, वह सारे पाप के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के धाम का अधिकारी बनता है। यह भगवान के नाम स्मरण की महिमा है। जे स्वामी नारायण नाम लेशे तेना बधा पातक बाળી देशे, छे नाम मारा श्रुति माँ अनेक सर्वोपरि आज गणाय एक। भावनगर के पास देरड़ी नाव का एक गांव है, देरड़ी, और उस गांव में एक भक्त रहते थे, तो रूपशी भाई इसका नाम था, रूपशी भाई। तो रूपशी भाई एक व्यापारी थे, वणिक थे, भजनी थे, भक्त थे, निष्ठावान थे, दिन भर स्वामीनारायण स्वामीनारायण भजन करते रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास में एक कुसंगी रहता था, और वैसे तो भक्ति तो नहीं करता था, लेकिन भक्ति करने वालों का भी वह निंदा करता रहता था। तो ऐसा हुआ कि उसका अंतकाल नज़दीक आया, और अंतकाल नज़दीक आया तो उसको यम के दूत दिखाई दिए। वह घबरा गया, और यमदूत चर्चा कर रहे थे, 4 यमदूत थे कि यह बहुत ही पापी है, इसको तो बहुत ही भयानक नरक में ले जाना है, ऐसी चर्चा कर रहे। वह भय से त्रस्त था। उसी समय रूपशी भाई उनके घर आए, उनकी खबर देखने के लिए, उनके पता देखने के लिए, तबीयत कैसी है पूछने के लिए। और जैसे ही रूपशी भाई उनके पास आए, यमदूत दूर चले गए। यह उसने देखा, जो बैठा था, सोया हुआ था आदमी, उसने देखा कि रूपशी भाई और ये दूर चले गए। तो 2-5 मिनट हुई, और रूपशी भाई ने कहा कि अब मैं जाता हूँ दुकान पर। तो जैसे ही खड़े हुए और यमदूत नजदीक आने लगे, तो रूपशी भाई कृपया आप बैठिए, आप मत जाइए यहाँ से। रूपशी भाई फिर से बैठे, और 5-10 मिनट चले गए। फिर यमदूत बोले कि अभी जब तक यह बैठा है तब तक हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो उन 4 यमदूतों में से 2 यमदूतों ने वेश बदला, और वहाँ पर आकर के कहा कि रूपशी भाई आप दुकान क्यों नहीं खोलते, हम आपके पास कुछ खरीदने आए हैं। रूपशी भाई ने कहा अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो बोले कि लेकिन आप जाएंगे तो मुझे भय है, यमदूत ले जाएंगे, आप यहाँ पर बैठकर भजन कीजिए। रूपशी भाई बोले कि देखो, मैं स्वामीनारायण भजन बोलता हूँ और मुझे कुछ आता नहीं है, तुम भी बोलो तो तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। लेकिन जीव की नादानियत देखो, वो बोला नहीं, फिर भी नहीं बोला फिर भी तुम बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। तो रूपशी भाई तो गए, और यमदूत उनका जीव लेकर यमलोक में चले गए। लेकिन इस नाम का प्रताप, ए नाम थी भूत पिशाच भागे, ए मंत्र थी तो सद्बुद्धि जागे। तो जो इस मंत्र को, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उनको इस लोक में और परलोक में कोई भय रहता नहीं है। यह भक्ति का बल है। इस लोक में भी हम दुख से मुक्त होते हैं, और परलोक में भी सारे पापों से मुक्त होकर, स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि चलो पाप भी करें और नाम भी लें यह तो भगवान के नाम स्मरण की महिमा है।
लेकिन महात्म्य का आधार लेकर कोई बोलेगा दिन भर पाप करेंगे, शाम को एक बार भगवान का नाम ले लेंगे, निवारण हो जाएगा, लेकिन यह सही अर्थ में भक्त नहीं होता। भक्त के हृदय में तो यही भावना होती है कि भगवान किस तरह से प्रसन्न हो वही आचरण मुझे करना है, ऐसी भावना हृदय में उसको सदा रहती है, तभी वह भगवान का भक्त कहलाता है। तो जानबूझकर नहीं, अनजाने में यदि पाप हो जाए तो उसका निवारण भगवान की कृपा से होता है। अज्ञानता में हो गया वह निवारण होता है, और फिर भगवान की कृपा से सारे पापों से मुक्त होकर वह भगवान के धाम में भी जाता है। तो ये भक्ति की महिमा है। कलयुग में तो ऐसा कहा गया कि कृते यध्यायतो विष्णुम द्वापरे यजतो मखेहि त्रेतायाम यजतो मखेहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कहता कि कृते मतलब सतयुग में लोग यज्ञ करते थे ना, अरे सतयुग में लोग तपश्चर्या करते थे, जंगल में चले जाते थे, हजारों हजारों वर्ष तक ध्यान करते थे। कृते यध्यायतो विष्णुम, ध्यान करते थे। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में सारे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। द्वापर युग में परिचर्यायाम, कितनी प्रकार की सेवा परिचर्या होती थी। परंतु कलौ तद हरि कीर्तनाद, उसमें जो फल प्राप्त हुआ था तपश्चर्या करने से, ध्यान करने से, यज्ञ करने से, परिचर्या करने से, वह कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण करने से हो जाता है। इसलिए गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि भजन करता करता क्रिया करिए तो अंतर मां टाढ़ू रहे। चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते जितना हो सके, हम वैसे व्यस्त तो बहुत रहते हैं, लेकिन दिन भर तो ऐसा नहीं होता। उदाहरण के रूप में आज सुबह में हम स्नान करने के लिए गए, तो स्नान करते करते हमने क्या किया? तो उस समय हम भगवान का नाम ले सकते थे? तो नहीं लिया। तो क्या उस समय हम बहुत बिजी थे? नहीं, तय नहीं किया था, नक्की नहीं किया था कि हमें भगवान का भजन करना है, तो समय तो चला गया। भजन करते करते क्रिया करने से हृदय में शांति रहती है, और हृदय में जब शांति होती है तब सत्पुरुष राजी होते हैं, और जब सत्पुरुष राजी होते हैं तब उसका जीव सुखी बन जाता है। यह गुणातीतानंद स्वामी का वरदान है। तो भक्ति दिन भर जहाँ पर भी हमें अवकाश मिले, नाम स्मरण रूपी भक्ति करने से, भगवान की दर्शन रूप भक्ति करने से हमारा जीवन भरा भरा रहता है। तो प्रार्थना करें कि मनुष्य जन्म की सार्थकता करने वाली ऐसी भक्ति हमारे हृदय में सदा बढ़ती रहे। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।